मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है इसके टोटल इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ मंथली पैकेजेस आर 60 करोड़ एंड इसके टोटल जो बैकअप रिजर्व्स हैं एसेट्स टू फाइट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप इज 3.5 बिलियन सब कुछ। और ये 400 प्लस फैमिलीज जो है हम इनको किस तरह से एक बिजनेसेस में फाइनेंस को फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को जो है मुख्तलिफ पैकेजेस दे रहे हैं जिससे वो तकरीबन पिछले 8 साल से। अब मैं सैयद सुलेमान आगा वाइस चेयरमैन और चेयरमैन मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज अली अहमद को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। Greater cause makes associations and later they become market leaders. Manzil Group of Companies since 2016 till date started with the concept of beating the evil food mafia, and while fighting all obstacles realizes every business has an evil mafia: food, real estate, media, construction, automobiles, currency exchange, investments and arts. These mafias harm both individuals and state, so we started providing alternate to every malpractice. We started debunking myths, and now we are a portfolio of 9 businesses with 100% satisfaction rate from our clients. Assalamu alaikum. This is Ali Ahmed, Chairman Manzil Group of Companies. You know me all very well, and ऐसा कुछ है नहीं कि हम और आप कोई पहली बार मिल रहे हैं। हमें बहुत से ऐसे भी गेस्ट हैं जो कि पहली बार आए हैं। सो वी हैव kept a lot of investors along with a lot of others who want to hear from us. We have got some stakeholders from the government, we've got some stakeholders from the armed forces, we have got some stakeholders, very respected stakeholders from the medical field, and on like engineering, and I would call upon every department of the government that has been working in different collabs with us and different investments with us. सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है that is about how we are dealing a portfolio of these businesses. हम इतने ज़्यादा businesses को डील कैसे कर रहे हैं और फिर इन businesses में finances को formulate करके हम किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को जो है मुख्तलिफ पैकेजेस दे रहे हैं जिससे वो तकरीबन पिछले 8 साल से सब बेनिफिट हासिल कर रहे हैं. Number one is the question which we come across very often. So for this we had to basically declare our role model. वैसे कोई भी बिजनेस जो है अपना जो है बिजनेस मॉडल अपना बिजनेस मॉडल डिक्लेयर नहीं करती, बट सिंस वी फेल्ट द नीड कि हमें इस पे बहुत ओपनली टॉक करना चाहिए कि हम बेसिकली करते क्या है और हम कैसे मैनेज कर रही हैं सब कुछ, और ये 400 प्लस फैमिलीज जो है हम इनको किस तरह से एक आई वुड से एक फंड रेजिंग सिस्टम के थ्रू हमने एक बिजनेस साइकिल के थ्रू हमने फैसिलिटेट करना शुरू किया, नॉट ओनली आवरसेल्व्स बट द मासेस. अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ डू वी डू दैट? ठीक है. The reason to answer this question is because it was not my liability to answer anyone this question कि what basically I do. ठीक है. But the reason to answer this question is कि the only claim from the day one since we graduated till date of my own I would say instincts, my studies was कि Islamic banking is something that is totally mistold to us. And the Islamic finance is basically the concept which should be studied. So we started working on the concept of Islamic finance and how to, I would say, make a model that will truly benefit people through its purchases and sales and the margins between purchase and sales. So, मैं कभी-कभी ये सब ये गिला करते हैं कि आप ज़्यादातर बीच में इंग्लिश में बोलने लगते हैं. मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा for this to be a bit understandable for every one of us. हमसे ये पूछा जाता है
कि भाई आप कैसे करते हैं ये सब कुछ, ये 9 कंपनीज को आप डील कर रहे हैं, इसमें कुछ पैकेजेस में आपके साथ लोग इन्वेंट्रीज खरीद लें, कुछ पैकेजेस में आपके साथ लोग जो है डीलरशिप्स कर रहे हैं, कुछ पैकेजेस में आपके साथ लोग जो है शेयर होल्डिंग्स ले रहे हैं, कुछ पैकेजेस में आपके साथ लोग मंथली रेवेन्यूज ले रहे हैं, आप करते कैसे हैं ये सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं अपने किचन में एक चीज ऐसे बनाता हूं, मैं अपने पड़ोसी को वो क्यों बताऊं, मैं उसको अगर वो बताऊंगा भी तो फिर भी एक सीक्रेट सॉस नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट स्टिल वी आर हियर टू आंसर, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, हाउ डू वी वर्क, व्हाट डू वी डू एंड व्हाई डू वी डू, ठीक है। सो हाउ, व्हाट एंड व्हाई आर basic 3 questions that we felt a need to answer, because we want everyone to know that there is a huge difference between an so-called Islamic bank and a business totally on ground associated with the people getting benefit from it from the last 8 years, alhamdulillah. Now coming to the point, how do we do it? As we know, most of us know, हम सबको पता है कि Jan's Enterprises जो है, it started back in 2016 when जब हमने एक बहुत छोटे लेवल, मैं चीज को कोई नहीं कहूंगा स्टोरी की जुजियात में जाते हुए, मैं कुलियात में ही बात करना चाहूंगा, ठीक है। हमने Jan's Enterprises इस कॉन्सेप्ट से बनाया था कि हम ऑर्गेनिक फूड जो है उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करके लोगों में उसको लोगों को उसके बारे में री एजुकेट करके दोबारा से एक रेवोल्यूशन लाई जाए उस तरफ, ठीक है। इट वाज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, basically think about their taste buds 1,000 times before opting for an organic food. We started with it, we faced huge problems, then we put in some own investments, then उसके बाद slowly and steadily orders replicate होना शुरू हो जाते हैं, orders replicate होना शुरू हुआ है, हमें मजीद products बनाने की जरूरत पड़ गई, हमें मार्केट में credit issues फेस हुए, एंड फाइनली एक साइकिल ऐसा सेट हुआ जबकि एक एंटरप्राइज जो थी अपने पैरों पे खड़े हो गई थी। नाउ वाज द टाइम कि ये एंटरप्राइज तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी, बट सिंस लाइक द स्पाइसेस इंडस्ट्री, ब्लैक टी इंडस्ट्री और आई वुड से होल ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसमें आप सारी दुनिया को सप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ग्लोबली इसका ग्रोथ जो पोटेंशियल है वो 100% है। सो वी हैड टू गो फॉर 100% ग्रोथ को एम करोगे आप जाके, तब ही मार्केट शेयर मिल जाएगा। इट्स कटिंग ऑफ गेन। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने इस एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 2 और बिजनेसेस में कदम रखा, एंड ये 2 जो मजीद बिजनेसेस थे वो एक करेंसी एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड एसेट्स एंड कमोडिटीज का था, और एक जो था रियल एस्टेट का था। Luckily, what we got was due to our own expertise and my own research in the international trade, and being a teacher of international trade as well, to I would say several universities, I started working over there with a team of 8 guys, and alongside हमने real estate में भी अपना पंजा आजमाया। रियल एस्टेट की साइड पे जब हम जाने लगे, सो ड्यू टू द लाइक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद गारंटी एंड विद लाइक टोटल क्लैरिटी, लोग हमें सुनने लगे, एंड फाइनली वी came across a good deal of joint venture between 2 parties, and then alhamdulillah due to our own efforts हमने उस joint venture में majority shareholdings का जो है वो status ले लिया, and for that we would like to even thank Sayyid Yusuf Shah Sahab who is sitting here, जिन्होंने उस मोड पे हमें सही तरह से गाइड किया, और रियल एस्टेट में किसी भी किस्म के फ्रॉड से इन्होंने हमें अपनी तरफ से जितनी भी एक भाई को कोई गाइडेंस दे सकता है वो इन्होंने हमें दी, एंड सो इसी वजह से हम भी जहाँ पे होता है यूसुफ साहब के साथ अपनी वो पार्टनरशिप जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में है उनको कंटिन्यू रखते हैं। खैर, व्हेन आफ्टर साइनिंग फर्स्ट JV we became we converted from real estate to a developer। रियल एस्टेट कंपनी को भी खत्म नहीं किया, वो चलती रही है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, साथ ही हमने डेवलपर कंपनी भी शुरू की। Then we faced a huge revenue inflow from the stakeholders जिसको हम मैनेज करना था। For this like this 14 group of companies and Manzil group of companies, they sat together and they formulated a way कि ये revenues जो है, ये revenues की inflow जो है, क्योंकि वो तो कभी भी सर्टन नहीं होती। यू नो कि एक इन्वेस्टर अगर कोई एक इन्वेंट्री लेता है, लेट्स सपोज एक फ्लैट लेता है,
तो वो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देता है, कभी टाइम पे देता है, कभी नहीं देता। दूसरी तरफ एक शॉपकीपर को आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो भी आपको पैसे जो होते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में कहा जाता है ओगराई में, यानी वो आपको इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहा होता है, ठीक है। सो यू हैव टू मैनेज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन बिटवीन देम, ठीक है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम सब ने जो है रेवेन्यू स्ट्रीम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए फिर एक्सचेंज दूसरे बिजनेसेस के थ्रू इंजेक्ट करके, लाइक हम ऑटोमोबाइल्स में, और सारी चीज़ों को हमने स्ट्रीमलाइन करके एक बिजनेस मॉडल जो है उसको आपस में एज एन MOU की शक्ल दे दी। So 14 group of companies and Manzil group of companies then started working together on this model. Now वहाँ से certain question marks होने लगे, लोग पूछने लगे कि basically हम जो हैं 5% कभी दे रहे होते हैं, कभी 6%, कभी 4%, कभी 4.5% based on our growth history. Like अगर आप हमारी history को देखते हैं तो there was a time जब 3 to 3.5% revenues generate किए अपने लिए और अपने इन्वेस्टर के लिए। There was a time जब हमने 5.7% को भी टच किया। So like जितनी भी इन्फ्लेशन ज्यादा होती रही है, ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमेशा इस बात को जो है नजर में रखा है कि जितनी भी इन्फ्लेशन हो, आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है इन्फ्लेशन मार्क से ऊपर आपको अर्न करके देता है, तब आप रेवेन्यूज को एक्रू करके, आपके रेवेन्यूज 3 साल बाद भी एक प्रोजेक्ट में आने हो, आप अपने स्टेक होल्डर्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड इन द लास्ट ईयर आप जो ले रहे होते हैं वो आपका जाती प्रॉफिट होता है, बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे इन्वेस्टर्स को बहुत इजीली मैनेज कर चुके होते हो। सो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट द ओनली थिंग इज कि जब बात आती है इंटेंशन की, तो अनलाइक द इस्लामिक बैंक्स, मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज इज अ कंपनी जो कि अगर 3% कमाएगी तो खुद 1% जेब में रखेगी, 2% इन्वेस्टर को देती है। दिस कैन इजीली बी ट्रेस्ड फ्रॉम एनी ऑफ आवर records. If you go to the bank, to the revenues departments, if you go to our own book of accounts, you'll find no difference in them. Number two, अगर मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कभी ज्यादा ऊंचा छक्का मार लिया, लेट्स सपोज 5 से 6% कमा लिया, still it will keep for itself the same 1.5%, and the rest it will be dispersing to the investor. And alongside जो भी पैकेज मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज हाई राइज एंड रियल एस्टेट में अपने कंज्यूमर्स को दे रही है, वो शादी इंडस्ट्री में कोई दे रही। लाइक अब लोग खुद हमें बताएं कि हमें अक्सर लोग कभी कभी कहते हैं कि दिस प्रॉफिट दिस मंथ वाज अ बिट लो, दिस प्रॉफिट दिस मंथ वाज नॉट लाइक ख्वान दे नोकन, एंड आवर ऑफर ऑलवेज इज कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रॉफिट्स, डू कम एंड टेक योर कैपिटल। सो हाउ आर वी मैनेजिंग दिस कि हमारे पास इक्विवेलेंट टू द इन्वेस्टमेंट उतना ही बैकअप कैपिटल भी पड़ा होता है। हाउ कैन वी डू इट? सो हमारा जो लास्ट 5 से 6 7 साल का रिकॉर्ड है वो आपको क्लियरली बता सकता है कि एनी इन्वेस्टर इन एनी मंथ इफ वांटेड टू लीव अस वाज इजीली लेट गो विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, हम एग्रीमेंट में 3 मंथ्स लिख लेते हैं, बट हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 10 से 15 दिन में किसी को रेट नहीं किया। नंबर 2, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो जब भी जाना चाहता था तो वो हमेशा गुड नोट पे गया। कोई भी इन्वेस्टर हमारे साथ कोई भी फॉल्स प्रैक्टिसेस करके नहीं गया। कोई भी इन्वेस्टर जो है हमने उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करने के बदले उससे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं की, इल्ला कुछ ऐसे लोगों की जो कि ऑलरेडी हमारे साथ इतने करीब हैं, इन टर्म्स ऑफ विजन। लाइक आई वुड से आप किसी के साथ ब्लड रिलेशन में करीब होते हो तो शायद आप इतना करीब नहीं होते जितना आप विजन में करीब होते हो। आई give credit to Dr. Sarwar Saab, who is very much same in the vision of a future with us. So, like the thing is, the group of companies has to play on one side with the funds it's receiving day to day, क्योंकि हमने बाज़ जगह पे स्टॉपेज लगाई हुई है। ठीक है, ऐसे मंथ्स भी गुजरे हैं जिसमें हमने पूरी मंथ में 4-4, 5-5 मंथ में इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिए हैं, मगर कंटिन्यूसली हमने कैपिटल्स लोगों को वापस किए हैं। ठीक है, सो बेसिकली एंड आई वुड डिक्लेयर कि राइट नाउ मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है इसके टोटल इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ मंथली पैकेजेस आर 60 करोड़, एंड इसके टोटल जो बैकअप रिजर्व्स हैं एसेट्स टू फाइट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप इज 3.5 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी हैव डन ऑल दिस वर्क टू आप सबके कैपिटल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सो for me, my business model is that we play in 4 businesses to generate your
monthly revenue, and the other 5 businesses to generate the capital growth वहाँ पे, ताकि किसी भी टाइम किसी की भी कोई इमरजेंसी होती है, किसी को भी अपना कैपिटल चाहिए होता है, he is most welcome to take back his own अमानत. Question answer session. I would like to motion you to display the क्या कहते हैं अपना overall group of companies के जरा monogram display कर दें. I just want to go through all of them once. हाँ, and pause it there. Pause कर दें इसको. ठीक है. So like I'll start talking about what actually we do have right now. The companies, क्योंकि अगर पूरी companies के बारे में आप सबको पूरी तरह पता ना हो तो ब्याह हो शवाना. So the thing is कि the primary company we own was of Jan's Enterprises. It was established in 2017 and basically started working in 2016. So मतलब सरकारी कागजों में ये 2017 में है. I'm like saying it very bluntly on a सरकारी मंच. ठीक है, we are here in Peshawar Services Club and totally in the surveillance of the Pakistan Armed Forces. So number 2, then we jumped off. आपने थोड़ी सी hierarchy को disturb कर दिया. Okay, so number 2 was the Manzil Assets and Commodities. We started trading the foreign exchange services as well, alhamdulillah, through a team of 8 members, जो कि initially a team of 2 members थी, and बाद में 8 members की team हो गई. तो वो risk analysis और सारा कुछ. And remember कि हमारी overall funding का सिर्फ 10 to 14% यहाँ पे होता है, ठीक है? मैं वो भी साथ clear करता रहूँ. And similarly 10 to 12% ratio over here होता है, ठीक है? Then we started the Manzil Developers, which is currently running the projects of Kushal Bagh Heights, along with 14 group of companies, and 14 Manzil Heights, along with 14 group of companies, and has got shares in other projects like the Custom Mart, and is already thinking to go beyond boundaries to Nathia Gali and Murray. तो वो अभी announcement हुई नहीं, तो वो बहुत soon होने वाली है, alhamdulillah. The deals are final and we're all set to do it. Then we've got this Manzil Digital Media Marketing Private Limited, which is already working on the marketing of different companies through their e-commerce websites, वगैरह वगैरह. And the creative team is sitting with me, and I've always appreciated them. हमारी सारे products की marketing से लेके दूसरी companies को marketing में support करना हम कभी पीछे नहीं छोड़ते. No doubt कि उसके बाद हम invoice जरूर भेजते हैं. ठीक है. Then we've got this Manzil Real Estate. Manzil Real Estate is basically working in the purchase and sales of inventories of दूसरों के project. ठीक है, like आपके SAF Associates कर लें, आपके दूसरे कर लें, ठीक है. We've got, I guess, guests from SAF Associates. Ms. Sumbul is here. ठीक है. So इनके different projects में हमारे, like we've got Riman Twin Towers से Fahim साहब, and along with आपके CEO साहब, and he's here, and we're happy to have you here, sir. So he's also here. Then we've got this other the Truth Squad, which is our basically debunking myths platform. हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को बगैर किसी मकसद के नहीं कर रहे. हमारा जो भी काम है उसके पीछे कोई मकसद होता है. See, in the market आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, आप उस प्रॉब्लम का एक ऐसा सोल्यूशन निकालते हो कि उस सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचा के आप रेवेन्यू उठा सकते हो, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है. दिस इज बिजनेस, ठीक है. इन Jan's Enterprises we came across many of cancer patients of family, and me personally tried to change this concept of revolutionizing to again towards the organic diet and reducing the risk of many diseases, not only cancer, ठीक है. Then in Manzil Developers, we jumped up in Manzil Developers and Manzil Real Estate to come up with the concept कि आप लोगों को छत प्रोवाइड करें, वैसी छत प्रोवाइड करें जैसे आप अपने और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, और उसको उस आसान तरीके से प्रोवाइड करें कि वो आपके अलावा किसी और के पास जा ही ना सके. ठीक है. नंबर 3, यानी उसको कभी छत की महरूमी हो ही नहीं. दिस इज व्हाट वी वांट. डेफिनेटली उसके लिए जो प्लान्स बनाए हमने, जो इंस्टॉलमेंट पैकेजेस बनाए, और उनकी इंस्टॉलमेंट्स को बूस्टेड सपोर्ट करने के लिए जो पैकेजेस बनाए, आई एम क्लेमिंग हियर ओवर हियर ऑन द मंच ऑफ Manzil ग्रुप ऑफ कंपनीज, इवन इन फ्रंट ऑफ यू सुंबल, कि आपके रब्बानी साहब भी वो पैकेजेस नहीं अनाउंस कर सकते. ठीक है. So then we have got Rumis, which is a concept related to Sufism, which is basically like soon to be announced, and it's basically on e-commerce, but अब यहाँ पे ये ground पे आ रही है. So Rumis is basically a spot
for book readers, for open mic talkers, कोई भी आ सकता है यहाँ पे. It's a totally different concept with a very unique sort of client जो कि इस जमाने में भी बुक पढ़ता है, जो कि इस जमाने में भी गैजेट से दूर रहता है. ठीक है. We've got this Wheels One Stop, which was a massive response, जिसको हमने सिर्फ एक मोबाइल फोन के थ्रू स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद वो पहले ही महीने में ब्रेक इवन से ऊपर हो गया और पहले ही मंथ में उसने 120 प्लस कार्स को सर्विसेज, डिटेलिंग एंड पीपीएफ्स डिलीवर कर दी थी. एंड उसके बाद हमने अटक रिफाइनरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके अटक रिफाइनरी के पहले पंप में उसको लोकेट किया. तो वहाँ पे सर्विसेज और डिटेलिंग्स एंड सोलर क्लीनिंग्स, इवन कारपेट क्लीनिंग्स, किसी काम को छोटा नहीं कहा, जहाँ से पैसा बन सकता था हमने. ठीक है. एंड राइट नाउ विद अटक रिफाइनरी वी आर मूविंग टू अदर स्टेशंस एज वेल. And we have also done an agreement with the Nayatel and different sort of banks for all of their cars to be totally provided services through us. So this was a short brief of the portfolio कि हमारा हर एक business किस किस चीज को करने में मसरूफ है. And हमारा अपना एक business जो development panel है, जो investment board है, वो महीने में 2 मीटिंग्स इसी बात पे करती है कि हम कौन सा नया आइडिया परसीव कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आइडिया मैं और पीर साहब अप्रूव करते हैं, बट फॉर ईच एंड एवरी आइडिया वी डिस्कस मोर देन 1000 आइडियाज एंड देन वी कम अक्रॉस वन आइडिया. क्योंकि आप वही बिजनेस कर रहे हो, आप वही इमारत बना रहे हो जो दूसरा भी बना रहा है, आप वही चाय कीनिया से, वियतनाम से इंपोर्ट करके बेच रहे हो जो दूसरा भी बेच रहा है. तो लोग आपसे क्यों खरीदे? इसके लिए आपका आइडिया में कोई डिस्टिंग्विशनेस होनी चाहिए और उस डिस्टिंग्विशनेस को क्रिएट करने के लिए हमें सर तोड़ के बैठना पड़ता है. I guess we should open it for question answers now. You want to say something? Yes. Obviously. Acha. And we've alhamdulillah got risk takers like Shahid Bhai over here. Shahid Bhai, it's very nice and pleasant to see you. And Shahid Bhai से हमने काफी business भी सीखा है. ठीक है, बहुत अच्छे लोग. डॉक्टर सरवर साहब से हमने जो है नर्व्स मजबूत करना सीखा है. शाहिद साहब से अपने बिजनेस को सीखा है. और वी गॉट मुजीब साहब, जिन्होंने हमको ऐसे टाइम में सपोर्ट किया था जब शायद बहुत कम लोग सपोर्ट करना है. मुजीब साहब वाज द वन जिन्होंने हमारे साथ 3 बिजनेसेस में लॉस करने के बाद प्रॉफिट में है. सो लाइक बिजनेस इज नॉट अबाउट ओनली प्रॉफिट, अबाउट लॉस. और जिन्होंने हमारे साथ लॉस किया उनकी कदर हमारे साथ आज भी सबसे ज्यादा है. तो मुजीब भाई आपको हमेशा से हैट्स ऑफ. थैंक यू सो मच. अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन करना है पहले वो ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. अली भाई, पहले तो आपके तवज्जुह से बहुत शुक्रिया कि यहाँ बुलाया. चंद बात है आपके लिए. काफ़ी अरसे से जान पहचान है शबीर भाई के थ्रू, और मुझे आज भी याद है 2016-15 में मिलते थे तो आपके साथ डिस्कशन चलती रहती थी. तो एक चीज़ जो मैंने उस टाइम आप में पाई थी, मतलब 2 आपकी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो आपने कैश कर लिए. मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ. एक है आपकी इनोवेशन और एक है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप. मैं पहले भी इस चीज़ में आपके साथ था, अभी भी हूँ, और समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे अगर इसको इसी तरह कंटिन्यू रखें तो. मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, चूँकि मैं भी इसी बिजनेस में हूँ, मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका मुझे मतलब मुश्किलात आ रही है उसको मैनेज करना. वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और इसी का आपने जवाब देना है कि आपके पास जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, चैलेंजेस क्या आते हैं और उनको एग्री कैसे कर लेते हैं. ओके, थैंक यू. तो शायद भाई आज तो क्वेश्चन के चैलेंजेस कैसे आते हैं, जो डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं. तो नंबर 1, इन्वेस्टर की सेटिस्फैक्शन होती है 2 चीज़ों पे. एक होती है उसकी कैपिटल की सिक्योरिटी, नंबर 2 होती है उसकी कैपिटल गेन या प्रॉफिट्स कहते हैं उसको. ठीक है. बट इन द पख्तून कल्चर इट्स लाइक अ पिटी टू से, आई एम अ पख्तून बाय माई सेल्फ एंड आई एम टारगेटिंग माई सेल्फ व्हाइल सेइंग इट, कि वी बेसिकली आर ऑफ मेंटालिटी ऑफ सूदखोरी. वी आर. ठीक है. लाइक दे हैव बीन सर्टेन इन्वेस्टर्स जो किसी महीने जब प्रॉफिट कम आता है तो शायद भाई आई नो हमें क्या कुछ सुननी पड़ती है, एंड हमारा जवाब फिर एक ही होता है और वो हतमी होता है, आप आपके आके अपना कैपिटल ले लें. ठीक है. बिकॉज वी कैन नॉट गारंटी द परसेंटेज ऑफ द रिटर्न दैट वी कैन गिव, एंड
people do not understand. Now the challenges जो आते हैं यहाँ पे वो दो ही होते हैं. Number one, या I would say दो ही होते थे. Number one, प्रोजेक्ट को पिच करना या बिजनेस को पिच करना, एंड उसके बाद उस बिजनेस को पिच करने की बेस पे उससे कुछ फंड रेज करना. ठीक है, ये दोनों एक टाइम में बहुत मुश्किल थे क्योंकि ग्राउंड पे इतना कुछ था नहीं. बट वंस आपके ग्राउंड पे कुछ होता है, लेट्स सपोज लाइक आपके 4 5 6 फ्लोर्स बन गए एक बिल्डिंग के, दूसरी बिल्डिंग पे काम हो रहा है, तीसरी पे हो रहा है, साथ साथ आपके जो है एक हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स आ गई है, आपके डिफरेंट बिजनेसेस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग प्रोडक्ट्स लोग देख रहे हैं, देन आपके लिए वो पिचिंग वाला मसला तो हल हो जाता है. बट नंबर 2 इज कि अब जब आप उनके साथ किसी भी डील को क्लोज कर रहे हैं तो फिर अंडरस्टैंडिंग का मसला आ जाता है, क्योंकि पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, एंड इट्स नेवर एवर पॉसिबल कि आप उनको वही परफेक्ट रिजल्ट दो जो कि अल्लाह की ज़ात दे सकते हैं उनको. ठीक है, रिजल्ट में ऊंच नीच डेफिनेटली आती है, एंड पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि लॉस के और प्रॉफिट के लिए दोनों को जहन में बिठा के तवक्कुल जब आप करते हैं तब भी उस प्रॉफिट में भी बरकत है और उस लॉस में भी यकीन करें सूद वाले ज्यादा फायदा है. वो लॉस आपको कोई हतमी लॉस नहीं देगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में प्रॉफिट में हमेशा बरकत होती है, बहुत अच्छी खासी बरकत होती है, एंड लॉस में भी तावान नहीं होता. इस बात को जरा सा समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक सूफी. हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो रेशियो है ऑफ एसेट्स एंड दिस इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज उसको ऐसा रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वेस्टर अगर आज भी हम कहते हैं कि सीज फायर, वी वांट नो मोर इन्वेस्टर्स एंड वी वांट टू गिव रिटर्न, वी वांट टू रिटर्न टू एवरीवन, सो वी विल टेक ओनली 24 days दैट वी वुड हैव रिटर्न द कैपिटल टू एवरीवन. ठीक है, सो दैट्स द फॉर्मुलेशन दैट वी हैव डिड. सो फॉर यू टू डील विद द इन्वेस्टर यू हैव टू सी हाउ स्टैटिस्टिकल ही इज. The more statistical he is, the more beneficial he is for you, because he would be much easier to deliver to. वो understand करेगा. अगर आपको पता चलता है कि हमारे पे ऐसे इन्वेस्टर्स गुजरे हैं जिनसे इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हमने बड़ा अफसोस किया था कि हमने इनसे इन्वेस्टमेंट की, तो आपने उन इन्वेस्टर्स से अगर आपने ये अचीव कर लिया कि आपने उनसे पहले से ही इन्वेस्टमेंट रोक ली कि नहीं हमें नहीं चाहिए आपको, मुझे पैसा नहीं चाहिए बंदा चाहिए, then it's a different approach. तो होंगे बाज लोग आपको ऐसा वो दिखा देते हैं कि यार आई कैन गिव यू दिस मच मनी इफ यू एग्री टू मी ऑन दीज टर्म्स. सो ओवर हियर अगर आपने अपनी टर्म्स में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, यू नो डॉक्टर सरवर साहब इज सच अ सीनियर पर्सनालिटी फॉर अस, बट वंस ही to go back to his home and then back to bank just to clear a check, you remember, and he respected the SOPs. He says nah, rules are rules. ठीक है, सो अगर आपको डॉक्टर साहब जैसे इन्वेस्टर मिल जाते हैं, ठीक है, जिया साहब जैसे इन्वेस्टर मिल जाते हैं जो कि आपको पूछते ही नहीं बल्कि बस सब कुछ खुद ही हो रहा होता है, देन यू आर रिलैक्स टू गो विद. मगर एक बंदा आपको कहता है कि नहीं आपने जो एसओपीज इतने टाइम में क्रिएट कर रहे हैं इसमें से ये हटा दो क्योंकि तुम्हारी एसओपीज तो बस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बस प्रॉफिट करके हो, देन आपको उस बंदे से शायद 1 अरब भी मिलते हो तो आपको रिजेक्ट करना चाहिए. शायद भाई आई होप वुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मुजीबुल्लाह है. बाज़ इन्वेस्टर हमसे ये सवाल बार बार पूछते हैं कि यार आप लोग जब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर इसको माहाना मंथली मैनेजमेंट कैसे करते हो इसको, और दूसरी बात ये है कि इसके शरई नुक्ता नज़र क्या होता है. देखिए मुजीब साहब, हमारे बेसिकली जो इन्वेस्टर्स लॉट जो है मंथली के जो बनने ये तो बहुत थोड़े और मतलब बहुत मीडियम रेंज के है ना. दिस जस्ट टू कीप सपोर्टिंग देम एंड टू कीप टेकिंग देयर प्रेयर्स. होता ही है लाइक लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओनली वन ऑफ आवर बिजनेसेस, जांस एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसके एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 10% मार्जिन मिलता है, रिटेलर को 10% मार्जिन मिलता है एंड 14% राउंड अबाउट ऑन एग्रीगेट कंपनी रख रही है, उस 14% राउंड अबाउट एग्रीगेट से आप 4 to 6% एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, सो द कंपनी इज कमिंग अलॉन्ग विद 8% ऑफ नेट प्रॉफिट. उस नेट प्रॉफिट में से 2-3% जेब में रख के 5% आपको दिन क्या बुरा. सो दिस इज हाउ वी डू इट एंड दिस इज हाउ वी डू विद एवरी कंपनी. एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक्रूवल बेस्ड हैं, जिनके 3-3 साल बाद प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हो रही होती है, तो वो एक्रूवल की बेस पे करते हैं. एक्रूवल फिर अकाउंटिंग का एक अलग सिस्टम है
कि आप कैसे उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पहले निकाल के उसको थर्ड ईयर में एक्रूवल में एडजस्ट कर रहे होते हैं। सो हिसाब किताब की बात है और शरई तकाजे के मुताबिक हिसाब किताब वक्त की अहम ज़रूरत है और तो करना पड़ता Ali, है। जी zama question nam da suggestion nam di چې تاسو ته کم خلک زموږ دردونه باید چې تاسو دغه A to Z دغه خپل شوینه وته ایکسپلین کوئ او په کال کې کم از کم یو د تاسو د انویسټر والا یو فنکشن ارګنایز کوئ چې دوی د خپل کوېسچنونه پکې رایز کوي او تاسو وته سوال جواب ورکوئ او بل دا چې د انویسټر درالو نو هغه ته تاسو انلاین دا ایکسپلین کوي اول سر نه او دا نور پروګرام هم وته ورکوي خالي دا نه چې زه درالو ما انویسټمنټ وکړلو او ساين مو وکړلو بس زلاړلم نو زما ډېر داسې رشتہ دار شته چې هغه ته تاسو یا دوی نه د تاسو کړي یا تاسو نه دی وته ایکسپلین کړي نو زما سجیشن دا چې دا شوی نه د دې په باره کې تاسو لږ خپل डॉक्टर साहब आपकी ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग जो होते हैं उनके एग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं और वो फिर भी कहते हैं साल 1.5 साल गुजरने के बाद भी कि हमें तो इनके एग्रीमेंट की समझ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो लॉट ऑफ पीपल है जो कि खुद डायरेक्टली आगे नहीं आ रहे, दूसरे के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवा के देन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब लेट्स सपोज लाइक मेरा एक इन्वेस्टर है, वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करता है, मैं उसको डायरेक्टली समझा देता हूँ, बट अगर उसका कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो उसको समझा रहा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो उसको उस लेवल पे नहीं समझा पाता जिस लेवल पे मैं उसको समझा पाऊंगा, बिकॉज दिस माई चाइल्ड, दिस माई बिजनेस, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, so if the investor is not directly coming to me and he's coming through an intermediary, तो definitely वो gap of communication रह जाता है। And we've always welcomed any investor to come and ask the frequently asked questions or the non-frequently asked questions, any one of them, to keep asking frequently from us. And like आज भी इस मंच पे जब हमने जिन इन्वेस्टर्स को मोस्टली यहाँ पे बुलाया है तो वो ओवरऑल गेस्टहुड का जो है आई गेस 50% हिस्सा होंगे, 50% आर द नॉन इन्वेस्टर्स, बट द रीजन बिहाइंड इज कि दीज वी कंसिडर एज द मोस्ट आई वुड से रिस्पेक्टफुल लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि हम अपना उसको समझते हैं। अली भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो आपके इन्वेस्टर्स है आप लोग उनके साथ अपना ऑडिट रिपोर्ट शेयर करते हैं, कितना ओपन है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को उनके साथ शेयर करने में? yes. इस पे जरा बताओ। मैं ये कहूँगा कि हम हर महीने शेयर करते हैं हमने तकरीबन हर महीने उनके साथ शेयर की, अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी उनके साथ शेयर की। ठीक है, I think दे आर इन्वेस्टर्स जिनको कभी प्रॉफिट कम कभी ज्यादा लगता है, शायद भाई वी हैव गॉट ह्यूज एसेट्स ऑन द नेम ऑफ द कंपनी, द ग्रुप ऑफ कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई इन द होम ऑफ माय फादर एंड अभी एक गाड़ी लेने के लिए मुझे पुरानी गाड़ी बेचनी पड़ती है। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर के पैसों के साथ इंसाफ किया और करते रहेंगे। तो वी शेयर इट ऑलमोस्ट एवरी मंथ विद देम, एवरी मंथ्स प्रॉफिट। और अगर कोई आता है उसको उस पर एतराज होता है तो द ऑडिट ऑफिस, द फाइनेंस ऑफिस इज टोटली ओपन फॉर एवरी इन्वेस्टर, चाहे वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर होता है, वो प्रोजेक्ट में जाकर परचेजेस की रसीदें भी देख सकता है। आपके साथ फवाद साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर हैं, इनसे पूछ लें, किसी भी साइट ऑफिस जाके ये बैठ जाते हैं कभी भी, या वहां से कोई भी डाटा उठा सकते हैं। इनको कभी कभी हमसे ज्यादा मालूमात होती हैं क्योंकि ये साइट ऑफिस ज्यादा जाते रहते हैं और हम इतने नहीं जाते। सो it's an open platform for everyone. Acha, I would like to just elaborate a bit about the researches that we have continued. हमने like हमारी 50+ organic products हैं in spices. We've got products in tea, हमारे products honey के, SRSP and European Union के साथ collaboration में चल रहे हैं। Herbal products की एक नई wave हमने शुरू की है, तो we have attained this मशीनरी कॉल्ड द लैब स्केल रोटरी इवेपोरेटर मशीन, जो कि पूरे पाकिस्तान में 2 यूनिट्स और उसमें सबसे लेटेस्ट मॉडल हमारे पास है। वी आर हैविंग एन एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट 20 लीटर्स पर आवर एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी प्लांट, यू नेम इट। और उन एक्सट्रैक्ट्स की अभी हम मजीद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, लाइक वी ऑलरेडी बीन इन द मार्केट इन द शैम्पू, द फेस वॉश एंड द फेस सीरम, और अभी हम मजीद उन प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज कि दे आर टोटली केमिकल फ्री, टोटली ऑर्गेनिक,
इवन कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे भी कोई केमिकल यूज नहीं हुआ, एंड फॉर अल्टरिंग दैट थिंग जो कि प्रिजर्वेटिव के लिए लोग केमिकल यूज करते थे, हमने मजीद ऑर्गेनिक वेज जो थे उनको ढूंढा और उसमें इंट्रोड्यूस किया, एंड वी आर स्टडीइंग इट मोर डे टू डे बिकॉज on the one hand the group of company aims to earn more and more, and on the other the group of companies जो है इनको अपनी ग्रोथ स्टॉप नहीं करनी, और ग्रोथ स्टॉप नहीं करनी तो आपने अपनी रिसर्च को जारी रखना होता है। Thank you so much, ladies and gentlemen, and I would announce you कि based on the attendance जो लोग आज आए हैं, they will be given a coupon which is known as the chairman and the vice chairman's coupon। आप हमारे जिस प्रोजेक्ट में भी आएंगे, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जो है प्रोजेक्ट प्राइस लिस्ट डिस्काउंट के अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आप लोग इख्तियार रखेंगे। सो अपना वो कॉपन जो है आप लोग मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनी से लाजमी क्लेम करेंगे। थैंक यू सो मच।